Hello, everyone, and a warm welcome all of you who are watching this discussion. Thank you for joining us once again for another insightful session by Speak for Success. We are really glad to have you here. This session is specially designed for students who are preparing for CA exams and are looking not just for motivation but a clear and practical roadmap to improve their performance. Today's session is not just about success, it is about process behind that success. From average student to CA final district topper, a roadmap session. Many students often feel this. I'm just an average student. Can I really achieve something big? This session is here to answer that with clarity. Today, we will break down what actually works in CA preparation, what changes are required to move from average to top performance, and most importantly, a step by step roadmap that you can apply in your own journey. Before we move ahead, let me briefly introduce the platform behind this session, Speak for Success. At Speak for Success, our mission is to support learners and young aspirants in developing the skills, mindset, and direction they need for meaningful growth. We do this through free weekly knowledge sessions, career focused certification programs, practical skill building initiatives. Our focus is always on real and actionable learning. It now gives me great pleasure to introduce our guest speaker for today's roadmap session, CA Narayan Gupta. So, Narayan sir cleared both groups of CA final examination in September 2025 attempt, and it was his first attempt. And he is just 21 and secured first rank in Satna district and became a district topper. His achievement was widely recognized and featured across platforms like News 18, Dainik Bhaskar, Patrika, and other regional publications. He has also been actively involved in CA community through his contribution to Sikasa committee. Currently, he is working as a finance professional at Niara Energy Limited in the Treasury Department. So we are truly honored to have Narayan sir with us today to share a clear, structured, and practical roadmap for CA students. For those who may be joining us for the first time, a quick introduction about myself. My name is Tanya Singh, and I am the moderator for today's session. I am associated with Speak for Success, where I host, facilitate sessions that aim to provide clarity, direction, and real value to students. Today, I will be guiding this roadmap discussion. So, before we begin, I would like to share one important thought. Toppers are not different, their strategy is. Success in CA is not just about luck, it is about right planning, consistent execution, smart revision. And today's session is about understanding that exact roadmap. So let us begin our session for today. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful introduction. एंड वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है सो हेलो एवरीवन फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स टू Tanya ma'am for giving me this incredible opportunity to speak in this session. It's an honor to be here and share my insights with all of you. I also want to take a moment to express my gratitude to each of the participants who are watching this session. Your time and attention means a lot to us. So let me give a brief introduction of myself as Tanya ma'am has already did it. Now, as I am a CA Narayan Gupta and I have completed my schooling from CBSE board from my hometown Satna, Madhya Pradesh. And thereafter, I joined chartered accountancy course, and then after I cleared CA foundation in first attempt, and then after I appeared for intermediate exams, and luckily I also cleared Group One and Group Two exams. And for my articleship, I moved to Indore and joined one finance-based firm in Indore, and I worked there under the role corporate finance, project financing,
and that's indication. And I was also a university topper, DAVV university topper for the academic year 2023-24, and I have completed my BCom from there. And in CA final September 2025 attempt, I cleared my CA final both groups in first attempt and secured first rank in Satna district. So that's all of me. And today I will be speaking about a very crucial subject that directly impacts many of us, from average student to CA district topper. Complete roadmap. With that, I would like to dive straight into the content and explore what are the strategies and actions make you perfect and help to clear the CA exams. So without wasting our time, let's get started. So starting from the CA foundation, when I was in class 12, it was clear that I have to choose चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. मुझे सीए ही करना था. ये क्लास 12 और उसके पहले ही ये चीजें डिफाइन हो गई थी. अब जैसे ही मेरे मार्च के एग्जाम्स थे, मार्च 2021 में मेरे क्लास 12 के एग्जाम्स कंप्लीट हुए थे, तो तो देन आफ्टर मई 2021 सीए फाउंडेशन जो अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरे एग्जाम्स के बाद आया, तो उस पर ही मैं अपीयर हो गया था. और अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं 12th बोर्ड्स के पहले ही उसके लिए तैयारी करना चालू कर दिया था. एंड उसके लिए कोई भी क्लासेस नहीं ली थी. वो सेल्फ प्रिपेयर्ड ही था वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड ऑल अदर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. तो इन्हीं प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करके सीए फाउंडेशन लकली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था. एंड देन आफ्टर फॉर सीए इंटरमीडिएट आई ऑल्सो टुक क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज. सो फिजिकल क्लासेस के लिए मैं कभी गया नहीं था. एंड जो भी जितनी भी क्लासेस थी इंटरमीडिएट के लिए भी, वो सारी पेनड्राइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस ही थी. तो अपने आप को सेल्फ रिजर्व करके लाइब्रेरी में 10 to 12 आवर्स बैठ करके लकली सीए इंटरमीडिएट्स के एग्जाम क्लियर किए. देन आफ्टर आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने अपना होम टाउन छोड़ दिया था और फिर आई मूव टू इंदौर. लाइक व्हाट जो अपॉर्चुनिटीज मुझे वहां पे मिलती वो शायद मुझे होम टाउन पे नहीं मिलती. सो दैट्स व्हाई फॉर माय करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड आई हैव टू मेक माय करियर इन फाइनेंस. सो उसको बेसिस पर लेते हुए आगे स्टेप रखा और एक फाइनेंस बेस्ड फर्म में एज अ फॉर द रोल कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम किया. एंड साथ ही साथ आर्टिकलशिप के साथ ही साथ जो सीए फाइनल का फेज रहता है, सीए फाइनल की हमारी स्टडीज हमें करनी रहती है. तो इट वाज ओवरऑल लाइक सारी चीजें प्लान्ड थी. जो भी अप्रोच थी ना, सारी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ थी. लाइक इन सीए फाइनल वी हैव टू अपीयर फॉर सिक्स सब्जेक्ट्स. प्रीवियसली वी हैव टू गिव 8 पेपर्स इन सीए फाइनल. बट जब मेरा अटेम्प्ट आया तो मुझे 6 पेपर्स देने थे. एंड 2 पेपर्स जो थे हमारे एसपीयूएम के थे, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स. लाइक जैसे सीए इंटरमीडिएट में मैंने टोटल 8 पेपर्स दिए थे. तो जो एसपीयूएम थे, सेट ए एंड सेट बी इज एप्लीकेबल टू मी, सेट सी एंड सेट डी इज नॉट एप्लीकेबल टू मी. तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो सेट ए और सेट बी था, सेट ए इज फॉर कॉर्पोरेट लॉ एंड सेट बी इज फॉर कॉस्टिंग. तो कॉर्पोरेट लॉ, सेट ए जो कॉर्पोरेट लॉ था, उसके लिए मैंने ना कोई क्लासेस ली थी. और उसकी पढ़ाई अपन ने कैसे की थी कि जो नोट्स थे, बहुत सारे फैकल्टीज के नोट्स आते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी फैकल्टीज जम रही है, राइट. सो मैंने यूट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के रिवीजन वीडियोस, फुल कोर्स बैच डला हुआ है, तो वो वॉच किए. और जो फैकल्टी बेस्ट सूट होती है उनका ही मटेरियल मैंने रेफर किया था. तो उनका मटेरियल रेफर किया और फिर उनके रिवीजन वीडियोस देखे. और उन्हीं के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे. और उनके खुद के पर्सनल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वहां पास आपको क्वेश्चनर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो वो सारी चीजें आपको लगानी है. तो वो सारी चीजें जब करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, नाउ यू आर रेडी टू गिव द एग्जाम,
तो उस केस में फिर आपको स्लॉट बुक करना रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम का स्लॉट बुक कर सकते हो। तो जो भी बच्चे जैसे सीए इंटरमीडिएट जैसे क्लियर किए, तो उनको एडवाइजेबल यही है कि पहले एसपीओएम जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है उनके पेपर्स को पहले क्लियर करें, देन आफ्टर आप सीए फाइनल की स्टडी चालू करें, उनके लेक्चर्स आप चालू करें। और एक चीज मस्ट है कि अगर आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स देना है, उसमें अपीयर होना है, तो आपका सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। तो जैसे ही आप इंटर क्लियर करते हो तो उसके क्लियरेंस के बाद आपको सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन ले लेना होता है। और जैसे ही जब आपका एसपीएम सेट ए निकलता है, तो फिर इसी तरह सेम मेथड आपको सेट बी के लिए भी करनी है। उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज है। आप जाइए, गो थ्रू करिए, आपको कौन सी फैकल्टीज अच्छी लगती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आप कितना ज्यादा ग्रास्प कर सकते हो उस फैकल्टीज से। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज करिए, फिर उन्हीं का मटेरियल रेफर करिए, और फिर उन्हीं के जो वन वर्ड जो उनके क्वेश्चंस आते हैं, उनके क्वेश्चनर आते हैं, उनको रेफर करिए। उसी अकॉर्डिंग आपको सेट बी का भी एग्जाम क्लियर करना है। जब आपकी ये बोथ दोनों सेट्स क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको सीए फाइनल के जो लेक्चर्स है वो उसको स्टार्ट करना चाहिए। अब सीए फाइनल में भी पहला आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग। पेपर नंबर 4 डायरेक्ट टैक्सेशन। पेपर नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एंड पेपर नंबर 6 आईबीएस। आईबीएस इज एन इंटीग्रेटेड एग्जाम है, जो कि सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। तो उसके लिए आईबीएस के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं चाहिए होती है, उसके लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी मैटर करती है। नाउ अब अपन को कौन से पेपर के लेक्चर्स कब लेने चाहिए। तो लाइक मैंने जो किया था ना, सबसे पहले मैंने एफआर किया था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट टेक समवेयर अराउंड 3 months टू कंप्लीट द होल लेक्चर, 3 to 3.5 months। देन आफ्टर आई टेक एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। It also takes somewhere around 3 to 3.5 months, and then after it comes auditing. So ऑडिटिंग के लेक्चर अपन को लास्ट में लेना चाहिए, बिकॉज उसका कंटेंट अपन को याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें याद करने की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो we have to take after AFM you can take direct tax, and after direct tax you can take GST, indirect tax, and after indirect tax you can prepare for the auditing। सो ऑडिट के लेक्चर्स हमें सबसे लास्ट में लेना चाहिए था। तो टाइमली अपन को अब ये सारे लेक्चर्स कब कंप्लीट करने हैं, हमारा जब भी सीए फाइनल का अटेम्प्ट है, तो मेक श्योर कि 6 मंथ के पहले आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सो बिकॉज मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम पीरियड चाहिए ही चाहिए होता है टू क्रैक दिस ये फाइनल विद गुड मार्क्स। एंड अगर उससे कम भी होता है तो हो जाता है, बिकॉज मुझे खुद को ही 3.5 मंथ समथिंग मिले थे। सो आई प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो आपके पास जैसा टाइम है, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चलना चाहिए। मेक श्योर कि इस जर्नी पे आप कंसिस्टेंट रहो अपने पढ़ाई को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आज 10 10 घंटे पढ़े तो कल 6 घंटे पढ़े, परसों तो हमारी पढ़ाई ही नहीं हुई, फिर नेक्स्ट आफ्टर हम फिर से 10 12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो अगर आप डेली 8 hours भी दे रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, तो देन थिंग्स विल बी हैपन, चीजें हो जाती है। इट दिस कोर्स नॉट रिक्वायर्स कि आप 14 घंटे डेली पढ़ो ही पढ़ो। आप 8 to 10 आवर दे रहे हो, बट डेली कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, देन इट इज मैनेजेबल। सो डिसिप्लिन्ड अप्रोच शुड बी देयर टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड और मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे जैसे सितंबर 2025 अटेम्प्ट देना था। लाइक आई एम एलिजिबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मेरा नवंबर 2025 एग्जाम था, बट आईसीआई ने चेंजेस ला करके 3 times इन अ ईयर 3 attempts कर दिए थे। तो लाइक आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सितंबर एग्जाम ऑल्सो। सो 2 months मैंने पहले दे दिए थे मेरे एग्जाम्स। तो वहां पर मेरा जो 6 मंथ का स्टडी पीरियड था वो कम होकर के 4 months का हो गया था। और मैंने जीएमसीएस बाद में की थी, लेट की थी, तो सो द टाइम कम्स टू 3.5 months ही इफेक्टिवली मिला था रिवीजन के लिए। और चीजें हो क्यों गई, हो इसलिए गई क्योंकि मेरे लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट हुए थे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि कंप्लीट योर लेक्चर्स फर्स्ट। एग्जाम के अटेम्प्ट के 6 महीने के पहले आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए।
एंड नाउ फिर आप चीजों को रिवीजन में लेकर के आइए। रिवीजन में कैसे लेकर के आना है, आप जिस भी फैकल्टीज से पढ़े हैं उन्हीं फैकल्टीज के नोट्स को रेफर करना है, कुछ भी नया नहीं देखना है। रिवीजन पीरियड में मेक श्योर डेट कि आपको कुछ भी नया नहीं देखना है, आपने प्रीवियस जिनसे पढ़ाई की है, जिन जो नोट्स आपने हैंड रिटन बनाए हैं या फिर जिन भी फैकल्टीज के नोट्स को आपने रेफर किया है, तो उन्हीं का मटेरियल यूज करना है। एंड मेक श्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेक श्योर कि आईसीआई मॉड्यूल इज मस्ट। आईसीआई मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये बात सच है। सो आप अलग अलग फैकल्टीज के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, बट एग्जाम में अपियर होने के पहले आईसीआई की मॉड्यूल के क्वेश्चंस जरूर देख करके जाइए। बिकॉज अगर वो इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर में ही अगर वो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो आईबीएस में दिख जाएगा आपको, राइट। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आईसीआई का मॉड्यूल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। अब जो हमारे जो फ्री टाइम जो अपन को स्टडी लीव मिलती है, तो वो स्टडी लीव जैसे 3.5 आवर्स की, सो हाउ आई मैनेज दैट 3.5 मंथ्स टू कंप्लीट होल द सिलेबस ऑफ सीए फाइनल। तो पहले तो अपन को इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, लाइक अब कहते हैं ऑडिट। तो ऑडिट इज समथिंग विच इज वेरी टफ। ऑडिट का पेपर हर किसी से जल्दी नहीं बन पाता है, तो हर किसी को ऑडिट में आई थिंक कि ऑडिट को अपन अपन को ज्यादा टाइम देना चाहिए। एंड और व्हाट आई हैव डन, 2 hours डेली आई हैव गिवन टू दी ऑडिटिंग, ओनली ऑडिटिंग। सो मॉर्निंग में हमेशा मैं ऑडिट को रीड आउट करता था, उसके पूरे नोट्स को रीड आउट करता था, और जितने भी एसेज हैं, एसेज के नंबर और उसके नेम, वो तो पूरे रटे हुई होने चाहिए आपको। सो एसेज हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, एनबीएफसी ऑडिट हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़े हुए होने चाहिए। और 2 घंटे डेली ऑडिट को देना ही देना है। वो डिपेंड करता है कि आपका वो सब्जेक्ट कैसा है। अब मेरा जो सब्जेक्ट वीक था तो मैं उसको हमेशा ज्यादा टाइम देने की कोशिश किया हूँ। तो डेली 2 hours आई हैव मैंडेटेड फॉर ऑडिट। देन आफ्टर फिर 2 घंटे देने के बाद जो पूरा दिन बचता था बाकी का, जैसे 8 से 10 घंटे बाकी के जो बच गए मेरे स्टडी करने के, तो उसमें फिर मैं 2 सब्जेक्ट को कैटेगराइज करता था। वन, अगर मैं एफआर ले रहा हूँ ग्रुप 1 का सब्जेक्ट, तो सेकंड सेकंड सब्जेक्ट मैं ग्रुप 2 का उठाता था। ग्रुप 2 का राइट, लाइक डायरेक्ट टैक्स, राइट। सो अगर 3-4 घंटे मैंने एफआर पढ़ा तो फिर नेक्स्ट 3-4 घंटे मैं डीटी पढ़ूंगा, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। एंड फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन में लेकर के आओगे तो इट टेक्स टाइम, लाइक 14 to 15 days फॉर वन सब्जेक्ट, वो आपको लगेगा। तो लाइक अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी उठा रहे हो तो विद इन 15 to 20 days आप 2 सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो। तो इट इज समथिंग विच इज वेरी एफिशिएंट, मतलब अपन को करनी चाहिए, लेकर के आनी चाहिए। सो ऐसे ही कर करके मैंने मेरे इट टेक समथिंग अराउंड 1.5 to 2 months फॉर फर्स्ट रिवीजन। एंड सेकेंड रिवीजन के लिए एक हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम वो एक हफ्ते के अंदर आपका एक पूरा सब्जेक्ट सेकेंड रिवीजन में रिवाइज हो जाता है। और ये जो मैंने रिवीजन किया था ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट्स ही मेजरली रिवाइज हुए थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतना समय नहीं था मेरे पास, तो क्वेश्चंस के लिए मैंने सिर्फ एमटीपीज, आरटीपीज और प्रीवियस अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उनको ही रेफर किया था। तो लाइक मैंने खुद से हाथ से लिख करके देखा था, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो जब एग्जाम लिखने बैठते हैं तो वो उनका हाथ ही नहीं चलता है, कहीं ना कहीं उनके एग्जाम भी छूट जाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट बिफोर अपियरिंग इन दी एग्जाम्स। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। तो मैं तो कहता हूँ कि जो एमटीपीज हैं, आरटीपीज हैं, और जो आपका जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट का जो एग्जाम पेपर है, उसको तो हाथ से लिख करके जाओ ही जाओ। सो ये सारी चीजें जो अपन को कंसिडर करनी चाहिए बिफोर अटेम्प्ट, बिफोर गिविंग अटेम्प्ट ऑफ सीए फाइनल। एंड ये जो जितनी भी जर्नी है, तो इसमें आपको कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी जा करके चीजें होती हैं। एंड दैट्स व्हाट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं लेक्चर्स को लेकर के कंसिस्टेंट था ड्यूरिंग माय ऑफिस आवर्स ऑल्सो। जब मैं आर्टिकलशिप चल रही थी तो मॉर्निंग में एक लेक्चर और इवनिंग में एक लेक्चर, अगर 2 लेक्चर डेली नहीं हो रहे तो 1.5 लेक्चर ही करो, लेकिन करो।
होने चाहिए। अगर आपको एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है, क्वेश्चंस और होमवर्क्स वगैरह सारे कंप्लीट करके पढ़ना है, तो डेली के एक लेक्चर भी आप खत्म कर रहे हो और क्वेश्चंस के साथ खत्म कर रहे हो, तो देन इट इज गुड। तो चीजें बढ़िया है, फिर आपको रिवीजन में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप और अच्छे से कर पाओगे उस टाइम पे। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर गिविंग अटेम्प्ट ऑफ सीए फाइनल। एंड जब आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट करते हो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है फॉर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट, तो जो फिर उसके बाद की जो फीलिंग्स है, फिर उसके बाद के जो मजे हैं, तो वो रियली इट इज प्राइसलेस मोमेंट, जिसको अपन कहते हैं कि लाइक फैमिली एंड योर रिलेटिव्स, योर सीनियर्स, योर कलीग्स, everyone is giving wishing you, and that feeling is which is something priceless, वो पैसों से नहीं आती है। एंड फिर उस दिन लगेगा आपको कि हाँ कुछ तो अचीव किया है लाइफ में। सो फिर उसके बाद फिर जब मेरा कैंपस वगैरह शेड्यूल होने लगा, लाइक प्री कैंपस भी मेरे पास कुछ ऑफर्स आ गए थे, तो एंड कि हाँ, कि फिर लगा कि हाँ कुछ तो है हमारे पास भी, लाइक सीए की एक डिग्री है जो हमें कमाने का जरिया है, लाइक हम कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और एक कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? व्हेन यू हैव डन समथिंग, व्हेन यू हैव अचीव समथिंग, तो यू गॉट कॉन्फिडेंस, राइट? एंड आपका जो नेम फेम मनी वाला जो चीजें है, वो एक स्ट्रगल वाला जो फेज है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, राइट? और आगे तो फिर करना रहता है, ऐसा नहीं है सीए बनने के बाद की भी लाइफ बहुत ज्यादा इजी है, बट चीजें कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में चालू हो जाती हैं, राइट? सो दैट्स ऑल, मतलब ये सारी जो चीजें थी। एंड फिर मेरा जो कैंपस हुआ, तो कैंपस में भी मैंने दो तीन इंटरव्यूज दिए, एक पीएसयू में भी हो गया था, ऑफर आ गया था, एंड न्यारा में भी हो गया था। सो जो बेस्ट था मेरे रोल, मेरे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के जो अलाइन कर रहा था, तो दैट्स आई हैव चूजन, एंड ऑन दैट बेसिस आई एम मेकिंग माई कैरियर अहेड। सो दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट आई हैव सेड। एंड और सीए के फाइनल के जो पेपर में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती है सीए स्टूडेंट्स को, वो आईबीएस के ही पेपर में आती है। वो इस समय और ज्यादा टफ होता जा रहा है, लोगों को, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक इट इज ओपन बुक एग्जाम, बट कहाँ पे जा करके क्या देखना है वो लोगों को नहीं पता है, राइट? सो आईबीएस के पेपर के लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि वहां पास आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है। आईबीएस का पेपर में मैं कैसे क्रैक कर गया, लाइक हाउ आई स्कोर दैट मच इन आईबीएस, तो मॉड्यूल्स जो थी, आईसीआई की मॉड्यूल्स थी, वो सारी कैप करके गया था। मैं जब गया था तो मैंने सारे फैकल्टीज के नोट्स और आईसीआई की मॉड्यूल सारी लेकर के गया था। अगर और क्वेश्चन बैंक फैकल्टीज की मैं नहीं लेकर के गया था, क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने की भी नहीं थी। तो जो चीजें मैंने देखी थी वो सारी चीजें मैं लेकर के गया था, आपके समरी नोट्स, आपके टीडीएस के टैक्स रेट्स, एंड एफआर के आपके जितने भी इंडेज हैं, वो सारी चीजें, ऑडिटिंग में आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए, एंड एएफएम के आपके जो भी जितने भी फॉर्मूलेज हो गए, एंड टैक्स रेट्स हो गए डीटी में और जीएसटी में। और डीटी और जीएसटी का एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उसमें जो अमेंडमेंट्स वाला पोर्शन है, तो वो हमेशा कवर करके ही जाओ, और नॉट ओनली कि आपका जो अटेम्प्ट है सिर्फ उसी अटेम्प्ट का अमेंडमेंट्स नहीं कवर करना, आपके अटेम्प्ट के प्रीवियस अटेम्प्ट का भी अमेंडमेंट्स कवर करना है, राइट? बिकॉज 10 to 15 मार्क्स का इन ईच पेपर आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिल जाएगा इन डीटी एंड इन डायरेक्ट टैक्स, राइट? सो अमेंडमेंट्स अच्छे से कवर करके जाना है। और आईबीएस के पेपर के लिए मैंने बताया कि जैसे स्ट्रेटेजी मैटर करती है, तो आपको ना सारे आईसीआई की मॉड्यूल्स लेकर के जाना चाहिए, और आईसीआई मॉड्यूल्स के हर चैप्टर के पीछे जहां पास टेस्ट और नॉलेज रहते हैं, वहां जहां पास क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां पास आप स्टिकी लगाइए। तो वहां पास जब आप स्टिकी लगाएंगे हर चैप्टर के पीछे, तो आपके लिए इजी रहेगा कि तुरंत उस उस चैप्टर के क्वेश्चंस में जाने के लिए, राइट? तो वहां पास आपका कहीं ना कहीं टाइम सेव होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आईबीएस के पेपर के लिए। एंड जो भी इनिशियल्स के आईसीआई मॉड्यूल्स के एंड आपके जो भी नोट्स है, इनिशियल्स के जितने भी
पेजेस है जो फालतू वाले पेजेस है, राइट, तो उनको आप स्टेपल कर दीजिए। तो जैसे ही आप कवर पेज टर्न करेंगे तो डायरेक्ट आप इंडेक्स में जंप हो जाएंगे, राइट। तो वहां पास भी कहीं ना कहीं पन्ने पलटाने का आपका टाइम बचता है। सो दैट मतलब ये छोटी छोटी चीजें है ना, जो अपन स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है और बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में अपना टाइम बचाती है। और हर आईबीएस का पेपर माना ही इसी के लिए जाता है कि आप कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आ रहे हो और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, राइट। आपके टेस्ट से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है, आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है उस पेपर के लिए, राइट। तो आईबीएस का पेपर जिनको भी टफ लगता है, तो मैं एक बात बता दूं सारे सीए स्टूडेंट को कि जब आंखों में अरमान लिया जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सो एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद ही को कर बुलंद इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई एम लिविंग टू तान्या मैम। Thank you so much, Narayan sir, for sharing such practical and structured insights with us. Thank you so much for volunteering today. You have covered everything very practically, and your session was really insightful. So, this is just a token of appreciation from Speak for Success side. थैंक यू सो मच। इट्स रियली मीन्स अ लॉट। If you found this roadmap session helpful, please stay connected with us for more such sessions that bring real value to your preparation journey. This session has truly given students not just the motivation but a clear direction and roadmap to follow. So uh, I hope you all follow this roadmap and clear your exams in the first attempt. Thank you so much for joining us. On behalf of Speak for Success, Narayan sir and myself, Tanya Singh, thank you so much for joining us.